Hello, dear friends. A warm welcome again today to all of you, to all the family members of the International Fab Talk Show, our dear audience, and all those present today with us on this platform. We are very happy to share the stage once again with none other than retired Lieutenant Colonel Ashok Kumar Gupta ji. We are going to speak today and share the views and thoughts and discuss about parenting skills. We have many requests flowing in on how to be a good parent, on how to protect our children in the modern age, in the 21st century. And today we invited Gupta sir to share with us his experience, his knowledge, and his wisdom. As he has been passing through a lot of stages, I just would like to officially try to explain something and share with you how Gupta ji sir could enable us to be a good parent, because he has come, he has been sharing his time with three generations. Like, he was a child, of course, and then afterwards he became a youngster, and then he got married, he had children, and then after his children have children. So there is a succession of the different generations he's been through. So we would like to know, how was he as a child, what type of parenting skills he received, what type of parenting skills he gave his children, and that's how it passes on. We could learn from all these experiences, and a great insight. He's a great reader, a great speaker, and above all, a great human being. We would like to thank our guest today for his time. Welcome, sir, to the International Fab Talk Show, and we thank you so much. Thanks, and it is my pleasure and honor to be here. Dear sir, as we all know, being a parent is not an easy job. So I would like to just ask you one special question before we begin with the others. As a little child, how did you feel that your parents were with you? Were they very nice and polite? How do you share that experience? Yeah, actually, they were very caring. They At that time, parents, their life, everything was devoted to their children, and they were a little bit strict with us. At that time, we did not like it, but when we grew up, then I reflect. Even when I became a little elder, then I knew how much they cared, how much they concerned, but they never expressed this care and concern. It was in their mind, it was in their heart, in their actions. They never tried to show, but it was all the time available. Great, sir. Great, sir. So do you see that there is an important change or a shift in the parenting skills, in the past parenting skills and the present? Is there any shift that you see? It has been, shift has been, changes have been, transformation, whatever you call it, all through. When we were little child, the families around us in our street, mohallas and relatives, friends, most of them were shopkeepers or middle businessmen or small businessmen. They didn't have time. Many of them will be on their business even on Sundays. Practically, there were no holidays. They will go early in the morning, return late in the evening. मारवाड़ियों में तो कहावत है, मारवाड़ी ज्यादा बिजनेसमैन दुकानदार होते हैं, वो कहते बच्चे जब हम जाते थे घर से सोए हुए होते थे, जब आते तब सोए हुए होते थे। कहते बच्चों को हमने ऐसे पढ़ते नहीं देखा, हमने ऐसे ऐसे पढ़ते देखा, बिस्तर पे लेटे हुए पढ़ते देखा। वो कहने की बात है, लेकिन प्रैक्टिकली दे आर नो टाइम, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाज 3 4 5 3 4 5 वाज नॉर्मल एवरेज। इट गो अप टू 6 7 8 9 10 और 12 इवन। बच्चे ज्यादा थे, मींस ऑफ इनकम कम थे, जॉइंट फैमिली थी, रिसोर्सेज कम थे, तो इसलिए लड़ाई झगड़ा भी होता था, ये था, लेकिन उसमें एक जान थी, बोरियत कभी नहीं थी। तो ये थोड़ा सा, फिर जब हम पेरेंट बने तो वी हैड मोर टाइम। कुछ सर्विस क्लास में आ गए, मैं भी सर्विस क्लास में था। बेटर टाइम वाज देयर। इवन शॉपकीपर्स वीकली ऑफ होने लग गए। लोग सुबह 7 8 बजे दुकानों पे जाने की बजाय 8 9 10 बजे जाने लगे। रात को 10 बजे आने की बजाय 7 8 9 बजे आने लग गए। थोड़ा टाइम संडे को ऑब्जर्व करते थे। वी हैड बेटर टाइम फॉर आवर चिल्ड्रन, बट
नो, अब क्या फिर शिफ्ट हो गया है। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे मोस्टली मदर्स वर नॉट वर्किंग, माँ घर में थी। हमारे टाइम में इट वाज 50-50, कुछ थी लेकिन कुछ। अभी ज्यादातर लोग मैडम सर्विस में है, माताएं। लेकिन बच्चों को जहां तक टाइम का सवाल है, वो हमारे टाइम में था। माँ के पास पूरा टाइम था बच्चों को देखने का, ध्यान रखने का, कुकिंग का। हालांकि उसका सारा टाइम कुकिंग में लग जाता, चूल्हा फूकना ये वो। हमारे टाइम में कुछ फ्रीडम आई, लेकिन जो वेल ऑफ थी लेडीज वगैरह, मोस्टली वो क्लब में चली जाएंगी, कार्ड्स खेलेंगी। बच्चों के लिए टाइम बहुत ज्यादा डिवोशन नहीं आई। बच्चों को कंफर्ट देना, उनको बेहतर कपड़े, बेहतर खाना पीना, उनको चीजें लेके देना जरूरत की, वो चीज बढ़ गई, टाइम वाइज नहीं। और आज की तारीख में जॉब है तो मजबूरी है, और कहीं उसका टाइम मिलता भी, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ है, हॉलीडेज हैं, सब कुछ है। लेकिन उसमें सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सो मैनी थिंग्स। और अब उसी में यूट्यूब। अब जो पेरेंट्स के पास जो टाइम है, वो उधर लग जाता है ज्यादा। बच्चों के लिए साधन आगे से भी बेहतर हो गए। बच्चे को ट्राई साइकिल, स्कूटर, तरह तरह के खिलौने, गेम्स, हर चीज, आईपॉड दे वो ले दिया। लेकिन बच्चों को जो क्वालिटी टाइम है, वो बच्चों को आज नहीं है। Ji, sir. We get it, sir. Very nice. Quality time is required for for the family. Both the parents should be there in the family to take care of the children. Our guest says, like, just do not buy the things that the children require. Do not focus on giving only the materialistic things. The most important thing is, your time, your love, your patient listening. And yes, my dear friends, both parents should contribute equally to the growth of the child. And dear friends, we go on with the next question. We have one of our guests who have asked us the next question to be put up now. The question here is, sir, from our audience, one of the guests who was earlier here with us. The question is like this: how to ensure that our children become responsible citizens and take care of us when we grow old? So how do we, make our children aware? How to train our children to respect us in our old age? एक्चुअली क्या है कि वी हैव टू फर्स्ट टेक हिज ओन केयर, रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ। अब उसके एग्जाम होते हैं तो नींद हमें नहीं आती, बच्चे को कुछ चिंता नहीं, वो मस्त होकर खेल रहा है, कहीं वीडियोस देख रहा है, कुछ कर रहा है। हमने उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की आदत नहीं डाल रहे। आउट ऑफ अवर लाड, प्यार, ओवर इंडल्जेंस हम उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे। वो हमारा बोझ क्या उठाएगा? हम उसको अपना स्कूल बैग उठाने के कंधे मजबूत नहीं कर रहे। हम कलकत्ता में थे तो 14-15 साल का एक बच्चा कॉलोनी के गेट पे आता था। सिक्योर कॉलोनी है, बस गेट पे आ रही है, सिक्योरिटी गार्ड है गेट पर। उसका बच्चा एक चल रहा है, 5-6 साल का बच्चा, 8 साल का, समझ आता है। 10-12-15 साल का बच्चा है। एक माँ बाप में से एक ने, या एक सर्वेंट है, एक माँ बाप में से है, एक ने बोतल उठाई हुई है, एक ने बैग उठाया हुआ है, उसको गेट तक छोड़ने आते हैं। हमने उसको ऐसे प्रोटेक्ट किया हुआ है जैसे सारी जिंदगी हमने उसको प्रोटेक्ट ही करना है। ही वांट्स टू ग्रो ओल्ड, वी आर नॉट लेटिंग हिम गो। हम उसको बड़ा होने नहीं दे रहे, हम उसको छोटे बच्चे की तरह केयर कर रहे हैं। अपनी परसेप्शन, उसको कंधे पे बोझ नहीं उठाना सिखाया कभी हमने। उसको खाना खाता अपनी प्लेट उठा के अंदर रखने नहीं सिखाई। उसको अपना सहारा नहीं बना, हमारा क्या बनेगा? होमवर्क हम उसका करके दे रहे हैं। हर चीज उसमें इंटेलिजेंस कम इन्वॉल्व का है। उसको कोई डिसीजन नहीं लेने दे रहे। उसको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर या पायलट बनना है, ये हम हिसाब लगा रहे हैं क्या बनाना है। उसकी अपनी लाइफ है कहाँ? हमने उसको अपना एक कठपुतली बना के उत्साह से चाहते हैं। वी फॉरगेट that he has got his own mind, he has got on his own intellect, he has got his own future, which he should be made responsible. We are not making him. Very nice, sir. Very well put in, sir. Really. I like the way you put that in. Very nice, sir. And our guest today has also focused that most of the parents are focused on social media. Even if the child is requesting
or asking for time and attention, most of the family members, especially the parents, are, spending most of their time on social media, neglecting their children. Of course, social media is good. There are a lot of positives, but when your child comes up to you, give them your time and respect, what your child has to share. So there's the next question coming up from our audience is how to make our children aware of this world, make them, prepared for the coming future strong, prepared for the future, or you could say worldly wise. तो दुनिया के लिए कैसे उनको तैयार करके रखना है कि भाई जिंदगी तो इज नॉट लाइक हैप्पी ऑल द टाइम, ऊपर चढ़ाव नीचे, चढ़ाव एंड विल बी अप एंड डाउन, उतर चढ़ाव तो रहेगी. तो देन हाउ parents should take the responsibility of preparing their child for the future, strong for the future. मुझे हंसी मजाक का स्वभाव है. एक चुटकुला याद आ रहा है, जोक. एक लेडी गई छाता खरीदने, अम्ब्रेला. दुकानदार से अम्ब्रेला खरीदेगा, पैसे दिए, पूछती है चलेगा? कहता बहुत चलेगा, इसे धूप और बारिश से बचा के रखना. इसको धूप और बारिश से बचा के रखोगे बहुत चलेगा. हमने बच्चों को ये किया हुआ है. वो उसको छाता जो जिंदगी में धूप बारिश सहने के लिए नहीं बनाया, हमने उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, धूप ना लगे, बारिश ना लगे. हमने उसको एसी में रखा है, जब वो बाहर जाता है उसको जुकाम हो जाता है. इतना केयर से उसको स्ट्रॉन्ग. आप देखो, कुदरत ने हमें इंस्टिंक्ट दिया है. चिड़िया है, चिड़िया आपने देखा हो, मैंने तो देखा है. वो बच्चा छोटा उड़ना सीखता है तो उसको थोड़ा उड़ता उसको गिराती है चिड़िया, उसको नीचे गिराती है ताकि वो चोट ना लगे, ज्यादा ऊंचाई पे नहीं गिराती. वो गिराती, फिर बच्चा स्ट्रॉन्ग बनता है, उसके पंख स्ट्रॉन्ग बनाती है और फिर उसको गिराती. धीमे धीमे उसके पंख स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उड़ना सीख जाता है. उसको मुश्किलों में, हालात में लड़ना सिखाएंगे तभी तो होगा. हमने कभी उसको ढंग से डांटा नहीं. वो कहीं को डांट देता तो उसको लगता है पता नहीं आसमान टूट पड़ा. हमारे टाइम में तो डंडे पड़ते थे, वो एक एक्सट्रीम था, वो भी अच्छा नहीं था. मुर्गा बना देते थे हमको, तो खड़े रहते थे धूप में छांव में. वो ठीक है, उस वक्त है, उस वक्त की डिमांड, जो भी हमारी कल्चर है, हमारी सेटिंग है. आज तो वो क्राइम है, जेल चला जाएगा टीचर. लेकिन ये भी एक एक्सट्रीम है. जब आप बच्चे को उसकी गलतियों के लिए भी बताने से झिझकते हैं, डरते हैं. बच्चे को पॉइंट ब्लैंक बता नहीं सकते बेटा ये गलती है, तो हम उसको जो है उसके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं कर रहे. उसको डिफिकल्ट, वो मुंह से निकालता, बाद में चीज पहले उसके मुंह में दे देते हैं. वो जायज निजायज भी उसको नहीं बोलते. उसको नौ सीखा ही नहीं कभी जिंदगी में, सुना ही नहीं. उसको कभी ना मिलती झटका लगता है. आप बच्चे की 10 में से 4 5 6 7 8 9 डिमांड पूरी करो, कभी एक में मना भी करो. मना उसको तरीके से करो, समझा के करो, लॉजिकली है. बच्चे को सीखने दो कि बेटा ये हमारे बीन्स में नहीं है, हमारी इनकम इतनी नहीं कि हम ये अफोर्ड कर पाए. जिसका आप कह रहे हो उसके पेरेंट्स की इनकम है, हमारी नहीं है. चाइल्ड लर्न ऑल दिस, वी आर नॉट टीचिंग इट. दैट इज द मेजर फ्लाईबैक इन दिस. यस, हम उसको टाइम जो नहीं दे पाए, उसकी कमी हम उसको साधनों से पूरी करना चाहते हैं, वो पूरी नहीं. जी सर, जी सर, जी सर. द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप सर. बहुत सारे पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा का घर का खाना नहीं खाता, हमेशा बाहर वाली खाना खाना चाहते हैं, जैसा पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम्स, पानी पूरी. घर का खाना नहीं चाहिए, तो घर का खाना वेस्ट हो जाती है कभी कभी. तो दे हैव अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स. तो हाउ डू वी टैकल दिस इशू सर? देखिए, ये कुछ तो समय है, कुछ बदलाव है, कई चीजें आसपास देखता है, लेकिन उसमें कुछ हम भी जिम्मेदार हैं. पहली बात, माँ बाप खुद कितना घर का खाना खाएंगे? आप अपने लिए खाना बाहर से ऑर्डर करोगे, बच्चे को कहोगे घर का खा. दूसरी बात, हमें कितनी माएँ हैं, अगर जॉब करते इसका मतलब ये नहीं कि किचन नहीं आनी चाहिए. और हम एक चीज आगे आएगी कि हम बच्चे को कल के लिए क्या खाना, कुछ बनाना सिखाना कुछ नहीं सिखाएंगे, तो खाना के ऑर्डर बाहर से ही करेगा. घर में खाना, हमारी ट्रेडिशनल डिशेज हैं जो बड़ी आसान है,
बहुत बढ़िया। अगर आप खीर बनाएंगे, किस बच्चे को स्वाद नहीं लगेगी? घर पे कस्टर्ड ही बना लेंगे, हलवा बनाएंगे, किस बच्चे को स्वाद नहीं लगेगा? एक तो ये है। दूसरी बात क्या है कि हम ओवर इंटेलिजेंस है। बच्चा नहीं खा रहा, बच्चा ये आज यही बना है, आप खाइए। हमारे घर में एक सब्जी बनती थी आगे परिवारों में, पूरा ज्वाइंट फैमिली होता था, एक सब्जी कभी दाल बन गई, सबको खाना पड़ता था। आपको नहीं स्वाद लगा, छोड़ो, आपके लिए अलग से नहीं आएगा, माँ कुछ बना देगी। अब क्या है, बच्चा नहीं खा रहा, अच्छा पहले हम पिज्जा मना करेंगे, फिर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो मंगवा देंगे। एक टाइम बच्चा भूखा रह जाएगा, कोई बात नहीं, टेल हिम और हर कि देखिए, हम वीक में एक बार मंगवाएंगे, दो बार मंगवाएंगे, तीन बार मंगवाएंगे, उसके अलावा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हम थोड़ा बहुत आपके टेस्ट के हिसाब से चीज बदल सकते हैं, सब्जी बदल सकते हैं, बनेगा घर में, हम सब उसी में खाएंगे। थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा उसको। घर में भी आप पूड़ी बना सकते हैं, पूड़ी कौन बच्चा स्वाद से नहीं खाएगा? हफ्ते में एक बार घर में पूड़ी सब्जी बना लीजिए, खीर या हलवा भी बना लीजिए। दीज आर वेरी हेल्दी डिशेज, आई टेल यू। पराठा वेरी हेल्दी फूड है, पराठा, स्टफ्ड पराठा, तरह तरह की सब्जियां, आलू, पनीर, मेथी, धनिया, गाजर, 10 तरह की सब्जी डाल के पराठा बनता है। जी सर। उसके मुकाबले कौन सी डिशेज के मुकाबले में स्वाद बनेगी? जी सर। दुनिया खा रही है। जी सर। जी सर। वेरी तो नाइस। हमें थोड़ा उसको खींचना होगा, हमें उसको इधर अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। जी सर। जी सर। Very nice. So home cooked food is the best. It will keep you safe and healthy. That's what our guest tells us, and it is really true. Home cooked food is the best at any given time. And dear friends, try to innovate new things and cook at home, or follow the traditional dishes and feed your family and keep them smiling and healthy. Yes, we have another question coming up from one of our audience who has made a request. ये शिकायत है पेरेंट्स का कि सर, हमारे बच्चे जो है हमेशा फोन के साथ, सोशल मीडिया के साथ बहुत टाइम वक्त गुजारते हैं, तो हमारे बच्चे बाहर जाके नहीं खेलते, तो इवन इफ वी सेंड आवर चाइल्ड आउट, दे डोंट वांट टू गो, दे आर ऑलवेज विद द मोबाइल। ये हम कैसे सुलझाएं? तो बहुत सारे पेरेंट्स का शिकायत है या रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है कि भाई यू प्लीज गिव अस an idea on how to deal with this issue. देखिए, दो दो तीन तरह से होगा। बच्चे का मन कोमल है, वो अट्रैक्ट होगा ऐसी चीजों की तरफ। पहली बात तो यह है कि हम में से कितने ऐसे जो पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं। मैं जितने लोगों को जानता हूँ उसमें आधे दिन में भी अपने फेसबुक अकाउंट में काम करते रहते हैं। ऑफिस में सैलरी दे आर नॉट ऑनेस्ट टू देयर ओन जॉब्स। आप खुद एडिक्ट होंगे। मैं सिगरेट दिन में 10 पीऊंगा, और बच्चे को स्मोकिंग इज वेरी बैड। आप सारा दिन व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे, टुट टुट करते रहेंगे, और बच्चे से उम्मीद करेंगे वो इस उम्र में जो है वो पढ़ाई करे, वो उधर सोशल मीडिया की तरफ। बी एन एग्जाम्पल। अरे फादर कहेगा चलो मेरे साथ, हम लोग बाहर फुटबॉल खेलते चलते हैं। जगह आजकल को कमी नहीं है, कॉलोनीज में और में बनी हुई है। और नहीं तो घर में भी इस तरह की चीजें आती हैं, एक्टिव ऐसी बॉल्स हैं जो सामान को नहीं तोड़ेंगी। अब बच्चे के साथ 10 मिनट खेल लिए, बच्चा क्या कहेगा, फादर के साथ मैं नहीं खेलूंगा, मैं उसको देखूंगा। माँ उसके साथ अगर खेलेगी बच्चे के साथ, तो क्या बच्चा सोशल मीडिया को प्रेफरेंस देगा? हमने उसके लिए सफिशिएंट अट्रैक्शन रखी नहीं। और फिर लिमिट करना होगा। पहली बात, ऐसे नहीं कि जैसे सख्त एक डिक्टेटर की तरह, पहले उसको बताना होगा देखो बेटा, ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, ये इसका आदी हो जाता है, आप देखो रह नहीं पा रहे, देखा आप नहीं खोलते, तो इसका मतलब यू आर एडिक्टेड टू इट, ये चीज बुरी है। सोशल मीडिया इज नॉट बैड, लेकिन गेटिंग एडिक्टेड इज बैड। तो ये इसलिए आपके इंटरेस्ट में, नॉट लाइक ए डिक्टेटर की, ये आपके इंटरेस्ट में, आपके फ्यूचर को देखते हुए, Yes. तो यू विल एग्री कि आपके लिए हमें इसको लिमिट करना होगा। आप मन में रखिए लिमिट, यू डोंट टेल हिम, उससे Yes. पूछो आपके हिसाब से कितना काफी होना चाहिए। देन यू नेगोशिएट, मेक हिम एग्री टू ए पॉइंट, एंड देखो बेटा ये जेंटलमैनली एग्रीमेंट है, लेट अस फॉलो दिस, यू लिमिट दिस, बट इन ए वे व्हिच डज नॉट पिंच हिम, उसको लगे मेरे लिए अच्छा है कि आपकी आंखों के ऊपर असर पड़ता है, पढ़ाई के ऊपर। और फिर आपके मित्र देखो आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, खेल, देयर आर सो मेनी वेज, मतलब उसको
रोकना भी है और ध्यान से डिसिप्लिन करना भी है, लेकिन बाय कन्विंसिंग है। Yes. आज का बच्चा और डंडे से नहीं चल पाएगा, लाइन में हो जाओ नहीं तो डंडा पड़ेगा, नो। Yes. Very nice. Very nice. That's so nice. Negotiating, a gentleman negotiating, like, I like the way, be gentle with your child. Negotiate properly at the right time and do not see that it hurts them or pricks them in a negative way. You give constructive criticism, but do not hurt the emotional and as well as the mental aspects of your child. Dear sir, और एक बड़ी शिकायत है पेरेंट्स के, निवेदन है कि आप यू सॉल्व दिस, सुलझाएं इसको। हमारे बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं, हर बात जो लॉट ऑफ लाइज, झूठ बोलते हैं, तो इसको कैसे हम सॉल्व करें? हमारे बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं? ऐसा है, देखिए, एक तो मैं कई बार सोचता हूँ, आई एम नॉट ए साइकोलॉजिस्ट, मैं तो एक कॉमन सेंस से बात करता हूँ। ये डिप्रेशन एंड दिस थिंग, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है, टेंशन, स्ट्रेस, इसका एक बेसिक रीजन, वन ऑफ द बेसिक रीजन इज झूठ। झूठ कब है? व्हेन आई एम नॉट रेडी टू फेस द रियलिटी, तब मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आज क्या किया, 2 घंटे मैंने आईपैड देखा या घर में नहीं थे, क्या किया, तो झूठ बोलना पड़ा बिकॉज आई एम नॉट रेडी। एक तो क्या है कि हम पेरेंट्स में, वो वैसे साइकोलॉजी में मैं ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, हर एक इंसान में 3 है, पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। अब क्या है कि बच्चे के साथ हमें एक फ्रेंडली बनाना पड़ेगा रिलेशन, so that he shares his fears, his concerns, his experiences with us. लेकिन उस वक्त हमको उसको जो मॉरल टीचिंग नहीं रखनी है। फिर तो हम टीचर आ गए, आई हैव टू बी ए चाइल्ड विद हिम। वो कहता बच्चे टीचर के चौक मार, अच्छा लगा निशाने पे कि नहीं लगा, अदरवाइज ही विल स्टॉप देयर, लेट हिम से समथिंग। कोई बच्चे ने उल्टी सीधी उसको आदत करी, वो कहा पापा, एक बच्चा है थोड़ा 8वीं 9वीं का बच्चा, मान लो 14 15 16, कॉमन है, इसमें कोई बात नहीं। मेरा दोस्त है, उसने सिगरेट पिया था, मुझे भी कह दिया कच लगाओ, अच्छा कितने कच लगाए? एट दैट टाइम यू जस्ट लिसन टू हिम एज ए फ्रेंड, डोंट गिव एनी एडवाइस, यू अंडरस्टैंड हिज साइक, देन यू कूलली थिंक ओवर इट। फिर उसको देखो मैं कैसे समझाऊं कि क्या अच्छा है क्या बुरा। और कभी आप उसका झूठ पकड़ लेते हो तो उसको उसी वक्त शर्मिंदा ना करें, आप उसको ठंडे मन से डांटे नहीं, उसको ठंडे मन से बताएं, देखो बेटा ऐसा है, एक बात आपसे कहनी है। और ये बात ऐसी नहीं कि बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा तभी करोगे, 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा भी ये समझेगा, 7 साल का भी। यू हैव टू कम डाउन टू दैट लेवल, इन दैट लैंग्वेज, इन दैट कॉन्टेक्स्ट। आप उसको कहे देखो बेटा, आपने हमें ये कहा था, ये ऐसा नहीं था, ऐसा था, है ना, कोई बात नहीं, हमने भी झूठ बोल रहे हैं बचपन में, कोई बात नहीं, ये तो कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र ना मैं हूं ना, लेकिन ये चीजें जो है ना, फ्यूचर में आपके लिए, ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। हम अगर है, गलती होती, किससे नहीं होती, कोई बात नहीं, पर उसके लिए आपको गलतियां एक्सेप्ट भी करनी आनी चाहिए, नहीं तो झूठ को कंपेल हो जाए। यू हैव गॉट 2 choices, either accept his shortcoming, fault और neglect or whatever it is, उससे कोई चीज टूट गई, कुछ नुकसान हो गया, या तो उसको एक्सेप्ट करो या झूठ को, विच इज ए बिगर लॉस। तो उसके लिए आपको छोटे लॉसेस जो हैं वो एक्सेप्ट करने की आदत डालो, झूठ कम हो जाएगा। जी, ये मेरा व्यू है। जी सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Be a good listener. A parent should be a good listener. Do not judge your children. Listen to them as a friend. एक दोस्त के नाते आपके बच्चों की बातें सुनिए, उसके बाद सलाह या सजेशंस दीजिए। That's what is our guest's, reply to that beautiful question. Yes, sir. We have another question. We just received another question from one of our virtual audience, and the question is, हमारे बच्चे लड़ते हैं, सिबलिंग राइवलरी, आपस में लड़ते हैं बहुत, हम बहुत तंग आ चुके। Especially this is from one of our mothers जो who's watching our show now. She sent a message. She says, मैम ये तो हमारे बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं हमें, तो हम इसको कैसे निपटाए? मैं तो तंग आ गई हूँ। तो आप क्या बोलते हैं सर? हम भी तंग आते थे उस उम्र में, क्योंकि हमने ऐसा लेक्चर नहीं सुना था जो मैं पिला, हमें नहीं था पता।
इट इज वेरी डिफिकल्ट। अभी यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है, लेकिन हैंडल करना मुश्किल है, नो डाउट अबाउट। देखिए, इसमें मेरा ये है जो मैंने सीखा है विद माय एक्सपीरियंस। एक तो ये है कि बच्चों का लड़ना उसको आप एक्सेप्ट कीजिए कि दैट इज अ नॉर्मल फीचर, उससे आप स्ट्रेस मत होइए। जिससे प्यार होता है उसी से लड़ाई होती है भाई, भाई बहनों में होती है, पड़ोसियों से जाके कितना कोई लड़ने जाएगा। अपनापन होगा तभी लड़ाई होगी। जब कोई होंगे तो आपस में डिफरेंसेस होंगे। इज अ हेल्दी, इट्स अ पार्ट ऑफ हेल्दी ग्रोथ। इसको आप बुरा मत समझिए। पहली बात, केवल एक लिमिट के अंदर कंडक्ट रहना चाहिए। यू इंश्योर दैट लड़ना को आप डिस्करेज मत करिए, और हर चीज में इंटरफियर मत कीजिए। हर छोटी मोटी चीज में एफआईआर लिख के इन्वेस्टिगेट मत कीजिए। पार्ट है, उसने दिया लिया किया, लेट देम सेटल। कहो बेटा आपस में सेटल करो, क्या है, आप बड़े हो गए हो, आपस में सुलझाना सीखो। जस्ट सी कि मारपीट नहीं करें ज्यादा, वो आजकल कम होती है, वैसे किसी जमाने में हमारे होती थी। और गाली गलौज ऐसी कोई चीजें ना हो जो लिमिट के बाहर हो, और गुस्सा हो तो थोड़ी देर के लिए हो, लंबे के लिए ना हो। देन यू कम इन। अगर हर चीज में विसल बजाते जाएंगे तो उसमें वो आपकी विसल सुनना बंद कर देगा। अपनी विसल कभी कभी बजाए जब वो बाउंड्री के बाहर कुश्ती चली जाए, एक झगड़ा लेवल के बाहर हो जाए, तब इंटरफियर करे। और फिर वरना 10 में से 9 बार जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग एंड देन यू कॉल वन बाय वन। एक दूसरे के सामने नहीं, कुछ चीजें एक दूसरे के सामने भी कहेंगे, लेकिन जो बेसिक है उसको आप बुलाएं। देखो बेटा, तुम्हारी छोटी बहन थी, उसको आप ऐसा कहे हो, वो 3 साल की, आप 6 साल के हो, या वो 6 साल की, आप 10 साल के हो। तो ये चीज थोड़ा सा उसको आप तरीके से डील करें। और छोटे को कहे देखो बेटा वो बड़ा है, उसको इस तरह से उसकी जरूरत है, उसका ये इस तरह से आप थोड़ा करना पड़ेगा, रीजन से करना पड़ेगा। और वरना आप लड़ाई की परवाह मत करो। Yes. और दिन में 20 बार लड़ते हैं, 20 बार सुनते हैं, परवाह मत करो। एक लेवल से ज्यादा हो जाओ कभी 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 आप मजाक में भी उसको कर सकते हो टैकल, स्ट्रेस होने की बजाय। आपको बच्चा दिन में फिक्स कर लो कितनी बार लड़ना है, जी यू टेक जी। इट लाइटली। बच्चे कभी मूड में इधर आओ इधर आओ। हाँ भाई बच्चों, आप देखो कल से कितनी बार दिन में लड़ोगे बता दो, 5 बार, 6 बार, 10 बार फिक्स कर दो भाई, उससे ज्यादा मत लड़ो। You handle it in a beautiful way. It will not stress you, it will not stress the children, and message will go. Great, great. Beautiful. Very nice. Beautiful, sir. I like the way you put that in very sweetly and very humorously also. So deal with your children with care and do not hurt your children in front of each other. Like, put down one and praise the other, or praise the other and put down the next child. Equally treat them such that they will feel loved and cared. Sir, we have the next question coming up, sir, for you. हमारे बच्चे शर्म महसूस करते हैं या शर्मिंदगी से, they don't want to meet the guests. जो गेस्ट अपने घर आते हैं, तो वी आस्क आवर चिल्ड्रन टू कम एंड कनेक्ट विद देम, तो हमेशा रूम में रह जाते हैं, तो आते नहीं है, शर्माते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है सर? तो यहाँ पर वी हैव रिसीव्ड अ क्वेश्चन जस्ट नाउ सर। हाँ ये है, वैसे आजकल इतनी नहीं है। आजकल बच्चे कम शर्माते हैं, बच्चा मौका मिलता कोई कोई है, लेकिन वो उसकी उम्र, उसका क्या कारण है, क्या उसमें कोई कमी तो नहीं है बोलने में या करने में, तो डेफिशिएंसी ऐसी तो नहीं है। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग, किसी जमाने में मजाक उड़ाते थे, कोई किसी में अगर कोई डेफिशिएंसी है, आज की तारीख में स्कूल में, कॉलेज में, टीचर्स, नोबडी मेक्स फन ऑफ एनीवन। कॉन्फिडेंस डेवलप करवाएं, उसको पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा ट्रेनिंग दें, और उसको आप बुलाएं, इंट्रोड्यूस कराए नहीं गेस्ट आप बच्चे को बुलाएं, और बच्चे को अपने किसी काम के लिए बच्चे को, वो बेटा वो कल आपको कहा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा 2 मिनट बैठो। ये टेक्टफुली थोड़ा सा हैंडल करेंगे, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये बेटा अंकल है, ऐसा कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वे में बताओ उसकी, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट हो जाए। आपको पता है ये बचपन में बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे, गेस्ट में कुछ तो होगा ही, उस गेस्ट में कुछ तो ऐसा होगा जिसको आप बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते राइट राइट। हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। ग्रेट।
कोई बड़ा इशू नहीं है बच्चों को। आजकल हमारे कॉलोनी में नीचे गणेश पूजा थी, बच्चे स्टेज पे का, स्कूल आजकल छोटे छोटे पब्लिक स्कूल हो गए, उनमें बच्चों को स्टेज पे बुला के बड़ा दिया जाता है मौका। जी तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा उसकी उम्र क्यों झिझकता है, कैसे है, प्यार से और से। और यू कैन गिव गेस्ट, आपका क्लोज है, उसको कोई चीज दे दे, बच्चे को बुला के वो दे दे बच्चे को, ओ ग्रेट चॉकलेट, फलाना, सम कॉमिक, सम बुक, समथिंग, कोई गेम, to get to your guest, one or two guests, यस so that child opens up. ये यस गेस्ट की भी तो जिम्मेवारी है बच्चों को खोले। जी 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 very nice very beautifully put sir so we have the next question coming up sir this is from Mr. Kumar who says that मेरा बेटा हॉस्टल जा रहा है और मुझे बहुत तकलीफ होती है मेरा बेटा को भी बहुत तकलीफ हो रही है to the separation part so how to tackle this in a few days his son is going to the hostel for higher studies in India of course not abroad how to tackle this question मैं क्या देखिए करूं मैं मुझे तो तकलीफ हो रही है मेरे बेटे को भी सेपरेशन का एंजाइटी हो रही है देखिए एक ऐसा है कि ये तो चीज मैं बीच में लाने वाला भी था। बच्चों को, मैं क्लोज हैं, उनका बच्चा गया इंजीनियरिंग पढ़ने कहीं, वो अब सुबह उससे पूछ रही है, माँ चाय बाय नाश्ते में क्या किया, कर लिया नहीं किया, चाय पी ली नहीं पी ली। आई डोंट नो, 16-17 साल का बच्चा हो गया है, तो इंजीनियरिंग करने जा रहा है या कुछ समथिंग लाइक है, तो इतना भी बच्चों को छाती से लगा लगा के मत रखिए। तो आप थोड़ा उसको इंडिपेंडेंट ग्रो करने दीजिए, और ये उसमें ये भी ग्रोथ का पार्ट है। ये आपको छोटी उम्र से ही ध्यान देना होगा कि बच्चे को इतना अपने ऊपर डिपेंडेंट ना करें। इफ चाइल्ड इज गोइंग आउट प्लेइंग, जो बच्चा बाहर इंटरेक्ट करता है तो उसको कम महसूस होगा, जो बिल्कुल क्लोज आप बाहर उसका इंटरेक्शन कम है उसी को ज्यादा महसूस होगा। तो ये तो एक देखो है, आपको भी सहना पड़ेगा उसको भी। और जो टाइम है हीलर है, कोई ऐसी बात नहीं, ही इज गोइंग फॉर गुड, तो आप उसको भी इंटरेक्ट करोगे, देखो बेटा हमारा दिल तो नहीं करता तुम्हें भेजने को, लेकिन तुम्हारे भविष्य के लिए ये करना होगा, तुम्हें भी सहना पड़ेगा, सेपरेशन हमें भी सहना होगा। लेकिन उसको ऐसा भी डिपेंडेंट ना करते कि वहां जाके भी वो दिन में 10 बार आपसे फोन पे बात करे, उसका हर बार 5-10 मिनट बात की, 2 घंटे रोज आपसे बात में लग जाए, पढ़ाई कर रहेगा। ये तो पढ़ने की बात है। मैंने तो वो देखा, जॉब करने जा रहा है इंजीनियर बन के कोशिश करके 25-24 साल की उम्र में, उसको अब छोटे गोद लिए बच्चे की तरह माँ की टैक में, फिर वो फोन आएगा, फिर माँ भी रोने लग जाएगी, फादर रोएगा तो नहीं गला भगाएगा, और बच्चा उधर क्या टेंशन देगा अपनी जॉब को, पढ़ाई को। बच्चे को शुरू में आपसे, ये रियलिटी है। आज हायर स्टडीज हो गई, हायर एजुकेशन हो गई, यू हैव टू प्रिपेयर साइकोलॉजिकली फॉर दैट many years in advance and prepare your child for that. Great, sir. So we have a question from Mr. Rosario from Panjim. He says, sir, the question is like this. My son and daughter both are planning to go to a foreign country for higher studies. How do I prepare myself psychologically? How do I train my mind, with the separation part? तो मुझे तो तकलीफ होगी, अभी दोनों बेटी और बेटा दोनों जाना चाह रहे हैं बाहर देश पढ़ाई के लिए, तो मेरा क्या होगा? How will I face this anxiety and stress? मैं अकेला हो जाऊंगा ना? तो that's the question. उसकी बीवी तो उसके पास है ना अभी। जी सर, but the children, yeah, but the children. ये एक रियलिटी है, ये इंडिविजुअल का कोपिंग विद सच सिचुएशंस, इंडिविजुअल प्रिपरेशन विल बी डिफरेंट। लेकिन ब्रॉडली मैं कहता हूँ, आपको इस चीज की तसल्ली होनी चाहिए कि मेरा बेटा बेटी कुछ ग्रो करने जा रहे हैं, अपने करियर के लिए जा रहे हैं, और ये चीज हमें पता होनी चाहिए। जिस दिन बच्चा पैदा होता है हमें पता होना चाहिए, बीच में हॉस्टल में जा सकता है, ये आज का रियलिटी है। 4 साल का बच्चा आपको पता होना चाहिए, 5 साल का, 6 साल का है, इफ यू आर प्लानिंग टू सेंड हिम टू हॉस्टल एट द एज ऑफ 10, 12, 15, 16, आई शुड नो इन एडवांस, आई शुड प्रिपेयर इन एडवांस। और ये आज तो बच्चा फॉरेन ना भी जाए, बच्चा वैसे कौन से पास रहते हैं, इट इज ऑल न्यूक्लियर फैमिली, बेसिकली ज्वाइंट फैमिलीज रही कहाँ है। तो आपको ये उसको ग्रो अप करके जॉब के लिए जाए, इट मींस दे आर ग्रोन अप, तो यू शुड हैव बीन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये कोई ऐसे एकदम चीज नहीं होगी झटका, 6 साल के बच्चे को नहीं भेज रहे हो आप,
तो ये करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अब भविष्य के लिए जाती दुनिया जाती है। आजकल ऐसा हो गया है, आगे लोग मस्कट, दुबई और ये पश्चिमी एशिया देशों में, जो पंजाब से धड़ाधड़ लोग गए, केरल वगैरह से बहुत गए हैं, सुना है। हजारों लाखों लोग जाते, कोई फैमिली को लेके जाता था क्या? फोन तो मोबाइल थे ही नहीं था। 5-5 6-6 साल सिर्फ कमाने के लिए जाते थे, एक पर्पज के लिए जाते थे। जब आपके सामने पर्पज है तो दूसरी चीजें कम महसूस हो। उनको भी अपने काम, पढ़ाई में एंगेज करना है, आपको अपने काम में एंगेज रहना है, तो उसके आपको कम ये महसूस होगा। इसका कोई नहीं, ये पार्ट ऑफ है, ये इमोशंस में जीना, ये तो जिंदगी है। दुख दुख आया इधर बुलाना। वो बंदा गया जंगल में, देख के आया, कहता भी फॉरेस्ट कैसा लगा? कहता फॉरेस्ट तो बढ़िया लगा, पर पेड़ बहुत है वहां, घास फूस, पेड़ झाड़ियां बहुत है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, मिलना बिछड़ना, ये लाइफ की ब्यूटी है। इसमें कोई दुख की बात नहीं है, अपने आप तैयार हो जाएगा मन। जी सर, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज फ्रॉम सुनीता जी, शी इज फ्रॉम नांदेड़, and she asks you sir, the question is like this: should we waste time, the time of our children, हमारे बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है क्या अगर हम उनको घर का कामकाज सिखाए या पकाना सिखाए, चाहे वो बेटा या बेटी हो, टीचिंग देम टू कुक एंड डू हाउस होल्ड चोर्स, घर का कामकाज सिखाए हम, तो क्या वो एक वेस्ट ऑफ टाइम होती है? बिकॉज दे हैव टू स्टडी, पढ़ाई भी करनी है उन लोगों को, तो इसको कैसे डील करें? सो दैट्स अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। या बाजार जाके छोटा सा थोड़ी चीजें लेके आओ किराना दुकान से, तो उनको बेचना है ये सब, तो विल इट अफेक्ट देयर स्टडीज? शुड आई ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज और बैलेंस इट, लाइक आस्क देम टू हेल्प मी विद घर का कामकाज के साथ? ऐसा कोई क्वेश्चन है जी सुनीता जी से। देखिए, ऐसा है कि ये भी लर्निंग है। आप इसको सब, जो कागजी की पढ़ाई है वही पढ़ाई नहीं होती है, ये लाइफ की पढ़ाई है। आगे हमारे 16 कला संपूर्ण बोलते थे, उसमें ये घुड़सवारी, तैराकी, ये वो चीजें थी, जमाने के तब बदल गई, तीरंदाजी। लेकिन ये पाक कला एक स्त्रियों के लिए खास तौर पे, आज मैं कहूँ आपके लड़की को नहीं, बेटे को भी किचन में सिखाइए। ये पढ़ाई का पार्ट है, पहली बात। दिस इज पार्ट ऑफ पढ़ाई। स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती, इज ए पार्ट ऑफ लर्निंग। कुकिंग इज पार्ट ऑफ लर्निंग। किसी भी सिचुएशन में किसी को जरूरत पड़ सकती है, और बाजार में बेचना रियलिटी है, प्रैक्टिकल लाइफ है। उसको आलू, धनिया, प्याज, टमाटर, कुछ तो रेट पता होना चाहिए। दुनिया की रियलिटी में उसको कहाँ टापू में आप उसको पाल रहे हो, और दुनिया में लेटिन भी दे, उसको पता हो टमाटर 100 रुपए किलो है या 200 रुपए किलो है या 30 रुपए किलो, प्याज किस भाव आता है, और उसको पहचान होनी चाहिए धनिया मेथी की। एक तो ये, और दुकानदार हिसाब कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, 24 घंटे कोई पढ़ाई नहीं कर। लाइफ में बैलेंस किसको कहते हैं? बैलेंस में सब चीज आनी चाहिए। खाने में आपको मीठा नमकीन पकड़ा दूं, नहीं स्वाद आएगा। उसमें हम दाल सब्जी, मीठा नमकीन, अचार भी रखते हैं, प्याज भी रखते हैं, चटनी भी रखते हैं, कई बार के लोग मीठा भी थोड़ा रखते हैं। तो ये थाली तभी बनेगी। अब लाइफ में तो लोगों को खालीपन, खोखलापन है, पार्टी बिकॉज ऑफ दैट। मैंने आपको कहा ना, ज्वाइंट फैमिली रही नहीं, भाई बहन और ताए चाचे के लड़के, कजिन और ये वो तो घर में कोई है ही नहीं। पढ़ाई में उतना, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड आईपैड एंड मोबाइल। आप क्या समझते हो, अगर उसको किचन में और धनिया दुकान पे नहीं भेजेंगे, वो पढ़ता ही रहेगा, वो आईपैड देखेगा। उससे तो धनिया लाना बेटर है। किचन में चाय बनाना, छोटा मोटा और ना सही, बेसिक चीजें, 2-3 चावल बनाया, रोटी बनाई, 1-2 सब्जी बनाई, चाय, 2-3-4 चीजें, मैं समझता हूँ लड़का लड़की दोनों को आनी चाहिए। ये बेसिक है। शर्ट में बटन टांगना और कपड़े ना सियो कोई बात नहीं, कोई बटन टूट जाए, थोड़ा शर्ट फट गया, ये चीज लड़का लड़की दोनों को सिखानी चाहिए। ये लाइफ में प्रैक्टिकल है, और ये दिल लगेगा, लाइफ में वैरायटी आएगी। और उन जो आप कह रहे थे आईपैड वगैरह, जो मोबाइल और सोशल मीडिया से क्या है, उसका एक तरीका ये भी है, उसको भी क्रिएटिव कुछ लगेगा, मैं लेके आता हूँ भाव तोल करके, देख के करके, लेट हिम सी द वर्ल्ड। Ji sir, very nice, very nice. Thank you sir so much. So the next question coming up for you now sir is like, grandparents, what is the role that they play in bringing up little children, the younger generation? तो क्या महत्व उनका रहता है घर में, ग्रैंड पेरेंट्स का?
देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, किसी जमाने में हमारा जो बीच में एक स्टेज आई थी उसमें निगलेक्ट होने लग गए थे। बच्चे वो अपने के ऊपर कंसंट्रेट करते थे तो उनको ग्रैंड पेरेंट्स बोझ लगते थे। आज वो काफी शिफ्ट हो चुकी सिचुएशन, क्योंकि माँ बाप तो जॉब करने जाते हैं, बच्चा छोटा घर में है, ग्रैंड पेरेंट घर में हो तो बच्चे की केयर हो गई, सर्वेंट वगैरह घर में काम करते केयर हो गई, और छोटी मोटी चीजें बाजार से भी ला देते हैं। और हमारे यहाँ कॉलोनी में हम नीचे सीनियर सिटीजन बैठते हैं, 10 15 20 लोग, शाम को 1 घंटा। वी सी आधी घर की केयर, जो ऐसी छोटी मोटी चीजें उनको बोझ लगती है, उनके पास टाइम नहीं। और हम लोगों को आदत है, पुराने लोगों को बाजार से चीज लानी करनी। एक तो ये, और आज पेरेंट्स के पास, किसके पास टाइम है बच्चों को कहानी सुनाए। ग्रैंड पेरेंट्स को कहानी आती भी है, सुनाने का टाइम भी है, और उनकी ऑब्जर्वेशन है, एक जिंदगी का तजर्बा है, टाइम है, ऑब्जर्वेशन है। बच्चे घर में खेल रहे हैं, लेट देम प्ले। लेकिन ग्रैंड पेरेंट का एक्सपीरियंस आंख देख लेती है कि कहीं बच्चे के फ्रेंड्स कोई ऐसा गड़बड़ तो नहीं है, कोई इसमें बैड एलिमेंट तो नहीं है, कुछ कंपनी बिगड़ तो नहीं रही है, बच्चे की आदतें चाल ढाल कोई बिगड़ तो नहीं रही है। तो एक उसमें सपोर्ट है, और एक निगाह है, और फिर एक पेरेंट के सामने बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। उसने अगर बच्चों से सेवा करवानी है, वो अपने माँ बाप की अगर सेवा करेगा, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। यू नीड नॉट टेल हिम। आज कितने बड़े लोग हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में उसकी टांगे बाजू दबाते हैं। हमने तो बचपन में अपने माँ बाप ताए चाचों की बाजू, टांगे पैर दबाए। आज की जनरेशन कितना दबाती है, और कल आपका बच्चा क्या करेगा आपकी सेवा। आप माँ बाप की सेवा कीजिए, आपको एक मौका मिला है। हम मंदिर में भगवान पूजने जाते हैं, यहाँ घर में ही भगवान है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत कड़वी बात है। भगवान के सामने हम भोग लगाना चाहते हैं, भोग लगाते हैं, और फिर हम जो अपने मन का है, सरदार जी हैं पंजाब में गुरुद्वारों में, उनको हलवा स्वाद लगता है तो हलवा बनता है, वहाँ हलवे का भोग लगता है। पंडितों को खीर अच्छी लगती है तो खीर का भोग लगता है। हम भगवान को भोग नहीं लगाते, हम अपना भोग त्याग जाते हैं। एनीवे, हम भगवान के आगे रखते हैं प्रसाद, और फिर मत्था टेक के खा लेते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर भगवान भोग खाना शुरू कर दे आज, आधे लोग भोग लगाना बंद कर देंगे। वो प्रसाद खाते नहीं है, इसलिए चढ़ाते हैं। और जो माँ बाप है हमारे, वो भगवान है हमारे लिए घर में। वो भोग खाते इसलिए हमें कईयों को बोझ लगते हैं। वो एक प्रेजेंस है, एक छत्र छाया है, एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है, जिंदगी का तजर्बा है। वो कई बार हमारे कॉलोनी में कुछ लोग हैं, उनका बेटा कहीं प्रॉपर्टी में फंसने वाला था, 70 80 लाख रुपया उसका डूबने की वो नौबत आ जाती। फादर ने जब उसके देखा, उसने, ये तो फ्रॉड है, इसमें मत फंसो। उम्र का तजर्बा, तो हमें एक चीज मिलती है, इसको जिस तरह से भी उगाए। जी सर, very nice sir. There's a question coming up from Mrs. Mumtaz Begum from Ahmedabad. She says मैं एक टीचर हूँ, और यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट है जो हमेशा एब्सेंट रहता है। जब कभी स्कूल आता है तो ही इज नॉट हैप्पी। व्हेन आई क्वेश्चन, जब बात करा बच्चा सा, व्हेन आई स्पोक टू द चाइल्ड सेज, टीचर हमारे घर में रोज झगड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स, मारपीट होती है घर में, हमारे डैडी लेट आते हैं, शराब पीते हैं, मम्मी को तंग करते हैं। तो ये कैसे आप सुलझा सकते हैं सर? व्हाट इज योर एडवाइस ऑन दिस? व्हाट इज योर सजेशन? अब टीचर तो इसमें कुछ कर नहीं सकेगी। उस चीज, अब घरों में जो ऐसा होता है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आगे क्या था कि ज्यादातर झगड़े होते थे, साधन नहीं, पैसा नहीं है, घर का खर्चा नहीं चलता, उससे टेंशन रहती थी। आज ज्यादातर घरों में ये कारण नहीं है, और जो उन घरों में नहीं है, उनमें इन कारण से झगड़ा होता भी नहीं। जिनमें रिसोर्सेज कम है, वहां नहीं ऐसा होता है। अब ये तो पेरेंट्स को भी देखना है कि बच्चा के ऊपर क्या असर इसका पड़ेगा। सम रिलेटिव्स, हमारा एक सोशल सिस्टम है जिसमें हमारा रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, एल्डर्स हैं, दे शुड स्टेप इन हैंड, या माँ बाप समझे। अब बच्चा तो बेचारा क्या समझाएगा
दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। होता है तो होता है। और कई डाइवोर्स बहुत मेरे पास एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेते हैं, डाइवोर्स है। अब ऐसे में बच्चों का क्या हालत होगा। लेकिन इंडिया में तो फिर भी लिमिटेड है, एक लिमिट है। और बाहर के पश्चिमी देशों में और में तो इट इज वाइड स्प्रेड। वहां एक्सेप्शन है कि माँ बाप जो उसके एक शादी की हो आखिर तक बच्चा बड़ा हो जाए तो वही चलती है। तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, क्या किया जाए। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चे जो है ना हमें इमिटेट करते हैं, जो हम करते हैं वो भी करते हैं, दे आर इमिटेटर्स, चिल्ड्रन आर इमिटेटर्स। सो हाउ डू वी पुट दिस क्वेश्चन अक्रॉस? पेरेंट्स शुड बी केयरफुल, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन विल ऑब्जर्व एंड सी व्हाट वी आर डूइंग। सो व्हाट, हाउ कैन यू शेयर योर व्यूज ऑन दैट सर? यस, देखिए, आप अगर अच्छी आदतें फॉलो करेंगे बच्चे सीखेंगे। आप अगर मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, किसी में भी जिसको भी आप मानते हैं, अगर आप वहां जाते हैं या घर में भी कोई पूजा प्रार्थना करते हैं, सब लोग इकट्ठा खाने को बैठते हैं, थोड़ा एक माहौल बनता है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जो सबके लिए प्लेजेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में अपराइट चलते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन रहते हैं, सेवा करते हैं, दूसरों का काम करते हैं, बच्चा सीखता है, नो डाउट अबाउट दैट। और सबसे बढ़िया जो है, दिस इज बाई एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल पेश करो, बच्चा अपने आप सुधर जाएगा। आपको मेहनत आदि करनी पड़ेगी। ग्रेट सर। सर here there's a next question coming up sir. The question is, थोड़े से पेरेंट्स ऐसे हैं कि भाई हमारे उनके बच्चों को ब्लेम कर देते हैं, जो कुछ गलत हुआ घर में या कहीं गलत हो रही है उनके लाइफ में, तो बच्चों को कोसते हैं कि भाई आप ही की वजह से हमारा जिंदगी खराब हो गया, या यू आर द कॉज फॉर आवर पेन एंड सफरिंग। Sometimes we have parents telling this to their children on their face. Then still children start thinking that yeah we are the burden, हम बोझ बन चुके हैं पेरेंट्स पे। थोड़े बच्चे सुसाइड्स भी कमिट कर देते हैं कि मैं बोझ हूं मेरे माँ बाप पे। तो इस हाल में क्या करना चाहिए सर? अब बच्चा तो, अब अगर बड़ा ग्रोन अप बच्चा है, उसको लर्न करना होना चाहिए। अगर उसकी अपनी स्पीड में स्टडीज है करके उसको समझेगा। लेकिन अगर छोटा बच्चा, बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता। ये तो पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा, काउंसलिंग देनी पड़ेगी, सिखाएगा कोई कि आप बच्चों को कैसे ब्लेम कर सकते हो। बच्चे अपनी मर्जी से तो आए नहीं है। यू आर ब्रॉट देम अप एंड इट इज योर ड्यूटी टू हैंडल देम। अगर उनमें कोई कमी है उसको ठीक करना, फिजिकल और मेंटल। आप उसमें दुनिया में लाए हैं, आपको उनका जिम्मेवारी है। उनको ब्लेम करना ये तो उनका एक अपनी मानसिक बीमारी समझ लो। दे आर नॉट मेंटली हेल्दी। उनके लिए तो कोई एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, कोई साइकोलॉजिकल साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट दैट मे बी रिक्वायर्ड। और घर में बड़े बुजुर्ग है, समाज है आगे, वो समझा सकते। जी सर, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर दैट सर। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब two parents, when both the parents are not in on good terms and they're always constantly quarreling and hurting their children, तो ये बच्चे कहाँ जाएं? ना मम्मी सुन रही है ना पापा सुन रहे, तो ये बच्चे कहाँ जाकर अपना प्रॉब्लम्स स्पेशली इमोशनली किससे शेयर करें, कहाँ पर जाए? तो बहुत सारे बच्चे जो है, दिस इज फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स, हिज नेम इज कार्तिक शेट्टी फ्रॉम बैंगलोर। ही सेज व्हेन माय पेरेंट्स फाइट, हाउ डू आई फेस दिस सिचुएशन? Who will I go and share my feelings with? आगे हमारा एक सोशल नेट जो था, जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि दीज थिंग्स वर टेकन केयर ऑफ। घर में कोई ताया चाचा, बड़ा बहन भाई, बुआ, मौसी, कोई लोग घर में होते थे जो इन चीजों को संभाल लेते थे। आज क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो बच्चा है माँ बाप है, बच्चे है माँ बाप है। अब किसके पास जाए? देखिए, या तो आजकल सोशल हेल्प हेल्प ग्रुप्स है कई, मतलब उसमें जो हेल्पलाइंस हैं, या तो उनमें कोई अप्रोच कर सकेगा। वो आप भी अपने चैनल से शेयर कर सकते हैं, ऐसी जो हेल्प ग्रुप्स हैं। तो या अपने किसी बड़े बुजुर्ग रिलेटिव्स जिनको वो जानता है उनको अप्रोच करे। और या फिर इतना बड़ा हो वो माँ बाप से हाथ जोड़ के कहे कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या किया जाएगा? जिनकी जिम्मेदारी जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो किसको दोष दें, क्या करें?
Very nice. Very nice. So I like the way you said, no, haath jod ke, you ask your parents to listen. Yes, very nice. Or, you can meet adults, senior citizens, you can speak up to, you take help online, you can connect with the right people. In case you have your parents disturbing you in any way, your mental health and emotional health is not fine, you could definitely seek help. Sir, as we come to the end of the session, one last question, sir. Parents ke liye, sabhi maa baap ke liye, every parent, what is that one advice you would like to give? Or I mean, a suggestion. एडवाइस तो कोई नहीं लेना चाहेंगे, तो आपका सजेशन क्या होगा सर? वन इसमें ब्यूटीफुल एक मैसेज. एक चीज मैं पहले कवर करनी चाहता हूँ जो रह गई मेरे हिसाब से। जब दोनों पेरेंट्स काम पे जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं, काम का पैसा है, सब मजबूरी है, दे आर नॉट गोइंग टू सोशल मीडिया, दे आर नॉट मिस यूजिंग देयर टाइम, बट इट इज ए कंपल्शन। आप क्या करें? बच्चा कहता आप मेरे को प्यार नहीं करते, बच्चे में फीलिंग आती है, वो कई बार कहता आप मेरे को प्यार नहीं करते बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग टाइम। हालांकि ये हमारे आज से 20 साल पहले था, आज तो बच्चा अपने आप में मस्त हो जाता है सोशल मीडिया पे। तो बच्चे को कहना, माँ बाप को ये समझाना चाहिए कि हम आपको टाइम इसलिए नहीं ज्यादा देते क्योंकि हम आपको प्यार करते हैं। माँ को जॉब पे इसलिए जाना पड़ता है कि आपको प्यार करती है, आपके भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रही है। जितना आपको चुभता है हमारे ऑफिस जाना, काम करना और आपसे दूर है ना, उससे दुगना हमको चुभता है। लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए हमें खुद भी सहना पड़ता है, आपको भी सहना पड़ता है। बच्चा बीमार हो, उसको कड़ी भी दवाई हमें पिलानी पड़ती है, ना बच्चे को अच्छी लगती ना हमें, लेकिन उसके हेल्थ के लिए जरूरी है। इसी तरह आप बड़े हो, अच्छी पढ़ाई कर सको, आपकी जरूरतें पूरी हो, इसलिए वी आर इन्वेस्टिंग अवर टाइम। तो उसके लिए थोड़ी सेक्रीफाइस देनी पड़ रही है मुझे, हमें, आप भी दे रहे हो। आप हमें कोऑपरेट करें, उसको बजाय ओवर इंडल्जेंस से उसको गिल्टी फील करने के, यू डोंट फील गिल्टी, यू फील प्राउड। If mother is working, she should feel proud, but she should make this understand to this his or her child also कि ये बात है, तो उसको थोड़ा लॉजिक समझ आएगा, वो कम महसूस करेगा। एक तो ये। दूसरी बात, वही बात मैं ये कहूंगा कि हम अपने जिंदगी में जो हमारे सपने अधूरे हैं, जो मैं डॉक्टर बनना चाहता था मान लो नहीं बना, मैं आईएएस बनना चाहता था नहीं बना, मैं कुछ और वकील जज बनना चाहता था, इंजीनियर बन, वो मैं अपने सपने उसको अपने बच्चों के थ्रू पूरा करने की कोशिश करना बुरी बात नहीं है। हमारे बच्चे हैं, उनके सपनों में जीना कोई अच्छी बात है, लेकिन हर चीज आप उसके लिए डिसाइड नहीं करें। उसकी एक अपनी जिंदगी, उसकी एक अपनी लाइफ है, उसकी एक अपनी एंटिटी है, उसके अंदर आत्मा है, सोल है, माइंड है। तो उसको अब क्या एक ऐसी चीज हो गई, हम कहते हैं आजादी, आजादी बिल्कुल नहीं बच्चों को, और कम हो गई, उसकी स्पेस बहुत कम हो गई है। वो किसके साथ खेलेगा माँ बाप डिसाइड करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेगा वो माँ बाप डिसाइड करेंगे, उसे बड़ा होकर क्या बनना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो फिर वो पढ़ेगा क्यों? क्योंकि उसका सपना ही नहीं है। इंजीनियर बनना उसका सपना नहीं था, मेरा सपना था, तो आप मैं मेहनत करूं, वो क्यों करेगा? उसका जो फ्यूचर है, लेट हिम मेक हिज ओन ड्रीम। आप उसको रीजनेबली इंटरेक्ट करके, बट मेक हिम, सेल हिम दिस ड्रीम, लेट हिम और हर मेक दिस हिज और हर ड्रीम, तब वो उसके लिए कोशिश करेगा। और फिर एक उसको मोटिवेट कीजिए। उसको मोटिवेट कैसे कीजिए? मान लो बच्चा पढ़ता नहीं, सारा सोशल मीडिया इधर उधर टाइम वेस्ट करता है, टीवी देखता है, जो भी करता है, और कॉमिक्स मूवीज जो भी देखता है, आप उसको डांटते डपटते हो कोई असर नहीं होगा। ये उम्र ऐसी है, जितना दबाओगे उतना और उछलेगा, स्प्रिंग की तरह है। आप उससे इंटरेक्ट करो, बेटा आप क्या बनना चाहोगे, आपका क्या बनना है, या उसने बोला होगा आपको। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि बड़ा होकर मजदूरी करूंगा, मैं इंटेंट होऊंगा, या मैं जूते काटूंगा, कोई बच्चा नहीं बोलेगा। बच्चा क्या बोलेगा? इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, आईएएस, वट एवर इट इज, ऐसे ही बोलेगा ना। जी. इसमें तो कोई दो राय नहीं। उसको कहो अच्छा, वेरी गुड, आई लाइक दिस,
जी। बेटा मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, देखिए सपना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जब आप इंजीनियर 20 साल की उम्र में बनना है आपने, जी। या 21 साल की उम्र में इंजीनियर बनना है, आज आप 8 साल के हो या 10 के हो या 12 के हो या 14 के हो, आप 10th में हो, 8th में हो, 12th में हो, उसके लिए आपको किस लेवल पे होना चाहिए, क्या आप उसके हिसाब से चल रहे हो? जी। आपकी पढ़ाई में क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्या डिवोशन होनी चाहिए? जो आज से 6 साल बाद आपको इंजीनियर बनना है, या 8 साल बाद बनना है, या 3 साल बाद या 4 साल बाद मेडिकल में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, क्या आप उसके हिसाब से आपकी नॉलेज कैपेबिलिटी उतनी है? जी। ये आप कभी सोचा है? सपना तो बहुत बढ़िया है, जी। लेकिन उस सपने को रियलाइज कैसे होगा? अपने आप आपके सपना देखने से तो नहीं होगा। यस। उसको रियलाइज करने के लिए आप क्या एफर्ट कर रहे हो? यस। क्या प्लानिंग आपकी, क्या आपका रूट प्लान है? यस। लेट हिम मेक हिम अवेयर, यस। लेट हिम रियलाइज अगेन एंड अगेन। एक यस। बार में नहीं हो, यस। कोई बच्चा एक बार में भी समझ जाएगा। जी। उसको हर वक्त मत टोकिए, खेलने वक्त, करते वक्त हर वक्त मत टोकिए। किसी वक्त शाम को 10 मिनट उसको पास में उठाए, 5 मिनट, फिर आप उससे इस तरह से इंटरेक्ट करिए। ऐसा कोई बात नहीं, बच्चे सेंसिटिव होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। आपको उसकी इमेजिनेशन में जाके, उसके लेवल पे जाके, उस कद पे आके उसके साथ बात करनी होगी। जी। जी। ऐसे बड़ा होकर मैं बात करूंगा वो नहीं सुने, बहुत बढ़िया मैं सर। उतना बड़ा बन के उसके साथ बोलूंगा, शेयर करूंगा, उसको लगे मैं अपने से बात कर रहा हूँ। ये हर चीज पे लागू, ये मेरा मैसेज है। ब्यूटीफुल। आप अपने नजरिए से हर चीज ना देखें, उसके एंगल से भी देखें वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। जी सर। जी सर। Beautiful message sir. Very beautiful sir. Come down to the level of your children and connect with them, coordinate with them, make them feel good such that they give back to you in your old age. अगर हम अपने बच्चों को बड़े प्यार से, and in the right way, if you take care of your children in your old age or in your, during your golden years, or when you are a senior citizen, they will take care of you. That's what we have to instill in them, how to be compassionate, how to be independent decision makers, and above all, how to love the world, how to love humanity. दूसरों का कदर कैसे करना है. So, this is what is the great message from our guest, that is Ashok Kumar Gupta ji sir. Thank you very much sir for your time. We are very happy. Our guests are also very happy who are here today with us, and as well as maybe our online audience also will definitely apply all these tips and follow your message and have a happy, healthy and a beautiful family life. Happy Sunday to all of you, and we'd like to thank Gupta ji sir once again. बहुत बहुत धन्यवाद sir. My pleasure. Nice. You have explained things, asked things very nicely in a very systematic manner. And last time also, when I got the feedback in my last interview, many persons in the comments also, I think some persons have written Yes. that the person taking interview, she has done it very beautifully. Many have written like that. So I also feel like that. With a smile on your face, thank you very much. My pleasure. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Dhanyavad, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Stay blessed, stay happy, and have a beautiful Sunday. Thank you. Thank you.